So today's topic is settlement of international disputes under international law. तो obviously जब international disputes है तो that would be governed by the international law only. How disputes, certainly in class you have certain disputes, in family you have certain disputes, in the organization you have certain disputes, at the state level you have certain disputes, nationally as well as the internationally. So disputes is bound to arise, but there are the ways and means to settle it. Now the international disputes, as we know, the under international law there is some mechanism. Once the UN Charter came into existence, then obviously the more shifting towards the peaceful settlement of the issues, but that should be in such a way the international security, international justice system should not be jeopardized. The first, this side we have the pacific means the amicable, शांति प्रिय तरीके से. The pacific means, the other side we have the coercive means, by force. But by force means doesn't never ever think under international law कि only state way war. There are some predecessor steps before the war, like you first put the economic sanctions, blockades, break up your diplomatic relation with that country, stopping of the supply. So these are the some intermediary the efforts or means to put the pressure that country to come to the solution, to come to the settlement platform. So come this side. The extra I have bifurcated in this chart. Just it should be captured by your memory in such a way. Once it is captured permanently in your memory, to just visualize which aspect is where, so that same may be replicated in the answer sheet. The extrajudicial non-binding. These efforts, these mechanisms, these means are non-binding. Then what is the use of it? There are certain, basically the two types of issues have been recognized. The one is the legal issue, other is the political issues. Even the UK, USA president, they have said, if we refer our political issues to the legal form, it would amount to the suicidal attempt by that country only. It will be against the injustice to the people of that country itself. The political questions, the political issues should be decided politically only, by amicably solution only. Those issues which are purely legal, they should be decided by the legal platform. The negotiation. What do you mean by negotiation? Negotiation अपने आप में ही एक आपको लग रहा होगा कि negotiate, to negotiate, बातचीत करके friendly way में. The disputes, wherever there is a dispute, if the both parties are inclined to sort out it seriously, then certainly the issue may be resolved as early as possible. If the parties have some malified intention, they really do not want any solution, or if one party is not really want the solution to that issue, then the issue will not be resolved forever. So first thing is your good intention. If the both party comes with a good intention, certainly solution will come. The negotiation is a very lighter form, you can say the first step in the sorting out the issues. Negotiation is, you may treat it as the simplest form the settlement. You may write down somewhere in your notes, it is the simplest form. इससे simple कुछ हो नहीं सकता कि the both parties, there is no third party in the entire process of negotiation. If there is an issue between the two parties, both parties, suppose the India on the J&K issue, the India's stand is always it is bilateral issue, but the Pakistan always take it to it up to the international level, and sometimes they say it is a multinational issue, but actually it is a bilateral issue. But if it is an issue between India and Pakistan, the both countries should come forward with a clean mind and sit across the table
and find the resolution, find the solution of it. So this is the negotiation. If the both parties are really interested, so nothing like that, both may decide that issue themselves rather than including the third party. So that's why it is a very simplest form. Or if really both parties are deciding that issue, there are the 100% chances that final outcome of that negotiation would be implemented. जनरली नेगोशिएशन में क्या होता है कि दिस ब्रॉडर इश्यूज, देखिए ज़्यादातर जो इश्यूज होते हैं वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं, बट आपका रिवर इश्यूज भी हो सकता है, आपके दूसरे इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी का इशू है अपना 1960 का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना। तो जनरली ऐसे केस में क्या होता है, या तो हेड्स ऑफ द स्टेट डिसाइड करते हैं या हेड्स के रिप्रेजेंटेटिव, सपोज फॉरेन मिनिस्टर है आपके, उसे लाइट, लेकिन इन सभी चीज़ों से पहले क्या है कि आपके जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं they create the environment, they create the documentation, वो सारी चीज पहले करके तैयार रखते हैं. Then things through the external affair ministry comes to the head of the state. Then the head of the states sit across the table and try to negotiate that matter. बहुत सिंपल है ये, इंग्लिश सी टाइप है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा. अच्छा, एक इसका मैं देख रहा था कि कई बार क्या होता है कि हमने बोला कि यस negotiation between two states, if the one state is stronger, suppose Maldives, if there is some issue between India and Maldives, let us suppose the Maldives is very small state, coastal states, very you can say small economy as compared to the India. If the both parties, then certainly there are the chances the bigger party, the bigger state, the huge state may exert some pressure on the small state. So small states hardly in favor of negotiation, right? अब जैसे ये इंडिया की मैं बता, इंडिया पाकिस्तान 1976 में शिमला एक कॉन्फ्रेंस हुआ, इंदिरा गांधी, ठीक है ना, उसके टाइम में, तो ठीक है वो चीज़ें का उस टाइम में वो रिजोल्व हुई कुछ. अब 74 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स था वो भी नेगोशिएशन से कोशिश की है. अब 77 में जो फ्राका बैरेज था इश्यू आपका बांग्लादेश के साथ, वो हमारा नेगोशिएशन से रिजोल्व हो गया था, क्योंकि हमारी रियल में इंटेंशन, क्योंकि देखिए बांग्लादेश जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश कैसे हुआ, पाकिस्तान का ईस्टर्न पाकिस्तान था पहले, वो आपको पता होगा ना. अब मैं पढ़ाते वक्त मेरे को कई बार डर लगता है कि भाई पता नहीं यार. अब ये आपका पाकिस्तान है, इसको वेस्टर्न पाकिस्तान बोलते थे, अब कंप्लीटली पाकिस्तान बोलते हैं. तो जो आपका ये बांग्लादेश वाला जो हिस्सा है आपका, ये जो बांग्लादेश है, इसको ईस्टर्न पाकिस्तान बोलते थे. नाउ इट हैज बिकम द बांग्लादेश, ठीक है ना. तो क्योंकि बांग्लादेश को लिबरेशन करने में हमने काफ़ी हेल्प की, तो उस वजह से वी वर वेरी सॉफ्ट टुवर्ड्स द बांग्लादेश, क्योंकि द स्टेट वाज इनफैक्ट इनडायरेक्टली क्रिएटेड बाय अस, ठीक है, दो इट वाज द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान. तो जब हमारी इंटेंशन अच्छी थी, जो कि बांग्लादेश तो बहुत एक नया एक कंट्री बना था, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग कोई इकोनॉमी नहीं थी, लेकिन विद द क्लीन हैंड्स हमने उसको बैरक जो इसका फ़र्क ब्रेज को जो हमने उसको डिस्प्यूट को रिजोल्व कर लिया, क्योंकि हम रियल में चाह रहे थे. तो ये अभी ऐसे आपकी इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे और भी कंट्रीज के इश्यूज हैं, लेकिन ट्राई टू रिमेंबर द इंडियन इश्यूज, क्योंकि वो ज़्यादा अपील करेंगे आप लोगों को और याद रखने में भी हेल्प करेंगे. अगर आप इधर स्वीडन वगैरह और उस साइड ज़्यादा भाग जाएंगे तो आपको याद नहीं रहेंगे वो, समझे. तो यू शुड बी मोर कंसर्न्ड विद द इंडियंस डिस्प्यूट्स इंटरनेशनली, तो ज़्यादातर आप फिर वो रेप्लिकेट करके आइए अपने उसमें. अब एक केस में देख रहा था, इसमें ये नेगोशिएशन जो ऑथर है इसमें, ये नेगोशिएशन की सक्सेस स्टोरी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभार नेगोशिएशन भी सक्सेसफुल हो जाता है. ज़्यादातर जो बिग और स्मॉल स्टेट्स में, स्मॉल स्टेट्स ऐसा देखा जाता है कि कहीं नेगोशिएशन नहीं, लेकिन एक ऐसा ही एग्जांपल भी है जहां स्मॉल स्टेट्स ने भी अच्छा नेगोशिएशन किया. जैसे क्या हुआ है कि इसमें 1988 में जो ईरानियन एयरलाइन थी, दैट वाज शॉट डाउन बाय द यूएस. तो ईरान का जो एयरलाइंस थी, जैसे अपनी एयर इंडिया है, तो पैसेंजर बैठे थे, उसको शॉट डाउन कर दिया यूएस ने.
तो हुआ क्या कि जो मिसाइल बेसिकली वो अमेरिकन क्रूजर जो था, 290 इसमें पैसेंजर थे, मर गए सारे। अभी टेस्टिंग वेस्टिंग चलती रहती है, थोड़ा सी आपकी ट्रेजेक्ट्री बिगड़ी और वो कोलाइड हुआ, जहाज नीचे गिरा और लोग, तो ईरान इससे काफ़ी खपा हुआ, ऑब्वियसली जिस कंट्री का है। तो उन्होंने क्या किया कि यूएसए ने इसके लिए अपना सॉरी फील किया और बोला कि इट वाज एक्सीडेंटल इंसिडेंट। बट ईरान ने क्या किया कि ईरान ने इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेके जाते हैं कंपनसेशन के लिए, और तो यूएस ने इसको ऑब्जेक्ट किया कि ये जुडिक्शन इसकी आईसीजे में नहीं बनती है। लेकिन उन्होंने उससे पहले क्या किया कि दोनों पार्टीज ने कोशिश की कि हम नेगोशिएशन से इसको रिजॉल्व करते हैं, और यूएस भी एग्री हो गया। यूएस इसको आईसीजे में नहीं लेके जाना चाह रहा था, ईरान चला गया था, लेकिन ईरान ने भी कोशिश की चलो ठीक है नेगोशिएशन से इसको शॉर्ट आउट करते हैं। और फाइनली होता क्या है यहाँ पर 1996 में ये मैटर रिजॉल्व हो जाता है, और इसमें यूएस एग्री हो जाता है कंपनसेशन देने के लिए। और इसमें ये मेरे को लगता है गलत है, इसमें जो प्रिंटेड है ये $131.8 टू ईरान की बात कर रहा है, और इंडिविजुअल जो कंपनसेशन था वो अलग। तो इतना कम कंपनसेशन हो नहीं सकता। अब ये मिलियंस में है या क्या है, वो मिसिंग है शायद इसमें, ठीक है। बट यहाँ पे व्हाट आई वांट टू कन्वे यू कि एक स्मॉल स्टेट होने के बावजूद भी नेगोशिएशन कभी कभार सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि यूएस वॉज एट फॉल्ट, क्योंकि यूएस फॉल्ट पे था इस केस में। अगर यूएस फॉल्ट पे नहीं होता, जनरली जो ज़्यादा ट्विस्टेड इश्यूज बनते हैं ना, वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बनते हैं, क्योंकि वो परमानेंट है। कोई भी कंट्री अपनी 1 इंच लैंड भी सिसीड नहीं करना चाहता, छोड़ना चाहता। बाकी दूसरे इश्यूज जो कंपनसेशन वगैरह वाले हैं वो फिर भी मोर और लेस रिजोल्व हो जाते हैं इन मैकेनिज्म से। अब देखिए आपका, अब मैं जैसे गुड ऑफिस की बात करता हूं, आपको सोचते हो कि यार गुड ऑफिस क्या है, अच्छा ऑफिस। गुड ऑफिस का मतलब ये है कि एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, बट थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट इतनी ही होती है कि वो अपनी जो सर्विसेज हैं, वो अपना जो ऑफिस है, अपना जो मैन पावर है, वो आपको ऑफर कर देगा, लेकिन वो खुद इन्वॉल्व नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? आपको मतलब आपको एक सेक्टोरियल टाइप की एक असिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये गुड ऑफिस ये है, और इसमें कई बार थर्ड पार्टी जो है वो या तो दोनों पार्टी आपस में नेगोशिएशन करके किसी को बना लें, या सिक्योरिटी काउंसिल भी कभी कभार रेफर कर देता है, रिकमेंड कर देता है। तो इसमें एक, जैसे मैं अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, कश्मीर इशू हमारा देखिए कब से चला हुआ है, इस पे नेगोशिएशन हो लिया, इस पे गुड ऑफिसेज हो लिया, इस पे सब कुछ हो लिया, लेकिन आज तक रिजोल्व नहीं है, और ये कभी रिजोल्व भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों पार्टी एक भी इंच छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है ना। अभी इसमें क्या होता है, एक मैग्नोटन 1949 में, डिक्सन 1950 में, और ग्राहम 1951 में, और जेरिंग 1957 में सिक्योरिटी काउंसिल ने अपॉइंट किए थे एज ए यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव टू सेटल द कश्मीर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और लेकिन आज तक इसका जो भी उनका आता है, लेकिन वो आज तक कभी भी या तो पाकिस्तान रिफ्यूज कर देगा या इंडिया रिफ्यूज कर देगा, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और इसमें जैसे एक बार क्या हुआ कि मैं इसमें ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट मेंजी की बताना चाहूँगा कि उनको एक बार इसमें ऑफर किया गया कि भाई ही विल ऑफर इज गुड ऑफिस फॉर द कश्मीर इशू। तो लेकिन इसको कश्मीर इशू, लेकिन इसमें वो भी आगे सफल नहीं हो पाया। और इंडिया ने जो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, खास बात ये मैंने पहले लिख दिया था, ये सारे बाइंडिंग है, इस साइड वाले बाइंडिंग नहीं है। या तो नेगोशिएशन का जो आउटकम है वो भी बाइंडिंग नहीं है, सेम वे गुड ऑफिस का जो रिजल्ट है वो भी बाइंडिंग नहीं है। ठीक है ना। अल्टीमेटली देखिए, अगर आपका कोई इश्यू है, अगर वो इश्यू आप सेटिस्फाई नहीं होगे तो वो रिजोल्व होगा ही नहीं, और आप थर्ड, मान लिया अगर इन्वॉल्वमेंट भी होती है तो आप उससे एग्री नहीं करोगे। अब हम बात करते हैं इसके आपकी मीडिएशन की। देखिए मीडिएशन में थर्ड पार्टी पार्टिसिपेट भी करता है और सजेशन भी देता है। तो यानी अभी तक हमने क्या देखा, नेगोशिएशन आपका, आप अपने चार्ट बना सकते हो इस तरीके से। नेगोशिएशन के बाद अगर हम बात करें गुड ऑफिस, गुड ऑफिस के बाद अगर हम बात करें मीडिएशन की, ये जैसे जैसे थोड़ी सी सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है, सुना रही बात आपको। तो जो आपका मीडिएशन है, मीडिएशन में क्या है कि थर्ड पार्टी एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता है। गुड ऑफिस में अभी तक हमने नहीं देखा, सिर्फ सेक्टरल सपोर्ट मिलती है।
तो यहाँ पर थर्ड पार्टी पार्टिसिपेट भी करता है और सजेशन भी देता है कि भाई आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से ये है, इसका ये होना चाहिए इस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन, ठीक है ना। फिर अगेन कि ये सारे के सारे एक्स्ट्रा जुडिशियल हैं, नॉन बाइंडिंग है, तो पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें मीडिएशन में क्या है, या तो दोनों पार्टीज डिसाइड कर लें या फिर इसमें कई बार यूएन या सिक्योरिटी काउंसिल भी रिकमेंड करता है कि ये आपके मीडिएटर होंगे। और मीडिएटर क्या है कि कई बार है ना, बिल्कुल जैसे जो उसका आउटकम होता है, सेटलमेंट होता है, उसको साइन भी करता है मीडिएशन में, ठीक है। लेकिन गुड ऑफिसेस में ऐसा कुछ नहीं है, स्वीट विल है। तो मीडिएशन ऑफ द सोवियत प्रीमियर causes in dispute between India and Pakistan was resulted in conclusion of Tashkent Agreement in 1966 is an example of the mediation। अब मीडिएशन का मैंने एग्जांपल बोला है, तो आप ताशकंद डिक्लेरेशन इस पे लिख सकते हैं, ताकि आपको जब भी आप ये लिखें तो आपको याद आएगा। अब देखिए, जब इंडिया का और पाकिस्तान का वॉर हुआ तो फाइनली उस समय ये यूएसएसआर था। ताशकंद आज बता सकते हो किसकी कैपिटल है? यस, पहले ये यूएसएसआर का पार्ट था, फिर ये डिसइंटीग्रेटेड हो गए, सेग्रीगेटेड हो गए, यूएसएसआर अब यूएसएसआर नहीं रहा, अब एक रशिया रह गया और सेपरेट कंट्री बन गए। तो तब तो उस समय ये यूएसएसआर का पार्ट था। तो ताशकंद में ये हुआ, लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय आई थिंक प्रीमियर अपने इंडिया की साइड से, तो दोनों में रिजॉल्व किया गया कि ताशकंद डिक्लेरेशन। तो कभी कभार क्या है कि 4 टाइमिंग के लिए चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं, 4 टाइमिंग के लिए, लेकिन मैंने बताया कि जो मेन इश्यूज है टेरिटरीज वाले, वो डिस्प्यूट से डिसाइड बड़े मुश्किल हैं। अब एक जैसे इसमें मैंने इंक्वायरी लिखा नहीं है, मीडिएशन के इंक्वायरी, लेकिन इंक्वायरी बहुत रेयरली कोई इसको एक इसमें लिख रखा है कि डॉगर इंसिडेंट हुआ था, एक डॉगर बैंक इंसिडेंट, उसके बाद कभी भी ये प्रोसीजर इंक्वायरी को इसको इन्वोक नहीं किया है। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है कि भैया एक थर्ड पार्टी है या पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेटर है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे मैटर को। तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं चाहता कि भैया वो उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन करे, ठीक है। अब यूनाइटेड जनरल असेंबली है, उसमें आर्टिकल 11 और 14 है, सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल 24 है, उसमें बिल्कुल वो एम्पावर्ड है सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल 24 में कि किसी भी डिस्प्यूट्स को वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, रिकमेंड भी कर सकते हैं कि आप ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट बताते हैं। लेकिन जनरली वो उनको डिपेंड करता है, वही पार्टीज मानते कि नहीं मानते हैं। अब जो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल मोड्स ऑफ सेटलमेंट है, वो आप अब इसमें आ जाइए एक बार। कॉन्सलेशन बेसिकली मैंने बता दिया कि फैक्ट फाइंडिंग है आपके, ठीक है। अब उस साइड अगर हम बात करते हैं आपकी जुडिशियल साइड की, आर्बिट्रेशन की, तो दिस इज मोर एक्सेप्टेबल एज ऑफ नाउ। आज के दिन सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेबल है, अगर कुछ जिसका सक्सेस रेट अगर हम बोलें कि कुछ है, तो वो आर्बिट्रेशन है। तो आप देखोगे कभी भी कोई कंट्री या कोई ट्रीटी करता है, आपस में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, तो उसमें पहले क्लॉज डाल देते हैं कि आर्बिट्रेटर, द डिस्प्यूट विल बी डिसाइडेड बाय द आर्बिट्रेटर विद द कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टीज, ठीक है ना, और डिसाइडेड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और बाय द यूएन, अगर वो ऐसा कुछ लिखते हैं तो उसमें। तो आर्बिट्रेशन क्या है कि आर्बिट्रेशन जनरली ये लोग एक्सपर्ट्स होते हैं उस फील्ड के, जो फील्ड का जो इश्यू होता है उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। इवन इंटरनेशनली तो पैनल्स भी बने हुए हैं एक्सपर्ट्स के, तो आप उसमें से देख लीजिए कि आपको किसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, दोनों पार्टीज के एग्री करके, ठीक है। तो इसका फिर भी मैं सक्सेस रेट कंपेरेटिवली बेटर मानता हूं आर्बिट्रेटर के केस में। जैसे अपना रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट है, ये वाला रन ऑफ कच्छ, तो ये क्या है कि जो इनका कुछ हिस्सा, वैसे आई थिंक ये 90 किलोमीटर करीब के स्ट्रेच है, और ये ऐसा होता है कि जनरली इस पे लिक्विड पानी रहता है, लेकिन कभी ये मार्शी लैंड से है। जैसे जब पानी सूख जाएगा तो पूरा आपका हार्ड सरफेस भी नहीं होगी, अदरवाइज अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो कर रहा है वहाँ पे, लेकिन कोई वहाँ पे हैबिटेंट नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सॉल्टी और वो है। लेकिन पाकिस्तान इस पर क्लेम करता है। फाइनली ये जैसे आर्बिट्रेशन मैटर भेजा तो 90% लैंड हमें मिला उसके हिसाब से, और 10% पाकिस्तान को मिला।
लेकिन पाकिस्तान आज भी वही क्लेम करता रहता है। हमने तो इसको मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, हम इसको रेज ही नहीं करते क्योंकि वी आर सेटिस्फाइड विद दैट आर्बिट्रल अवार्ड। अभी 2 साल पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बात भी उठाई थी, सर ग्रीक जो ये बाउंड्री है यहाँ की, देखिए क्योंकि ये स्टेट पहले प्रोविंसेस थे, फिर प्रोविंसेस क्या है कि मर्ज हो गए, तो ये डिस्प्यूट्स तो रहते ही हैं। अब पहले के किंगडम ने कोई ट्रीटी की किसी दूसरे के साथ, अब वो दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, तो ये इसलिए इश्यूज बनते रहते हैं। अब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक प्रकार का आर्बिट्रेटरी है, लेकिन ये परमानेंट टाइप का आर्बिट्रेटर है यूएन चार्टर के हिसाब से, ठीक है ना। ये आर्बिट्रेशन क्या है कि टेम्परेरी है, आपने कोई पर्टिकुलर ट्रीटी की है और उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसको डिसाइड करने के लिए आप आर्बिट्रेटर बनाएं, समझ गए। और आईसीजे क्या होता है कि एक ज्यादा लीगल फॉर्म का एक प्लेटफॉर्म होता है। इसमें जैसे आपके ट्रेडिशनल कोर्ट जैसे अपने यहाँ कोर्ट्स हैं, तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग होगी, रिकॉर्डिंग होगी, एविडेंसेज होंगे, है ना, तो ये कोर्ट की तरह परफॉर्म करता है ज्यादा, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आपका। इसके बारे में ज़्यादा आप जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा आप देखेंगे। तो ये तो था आपका पैसिफिक मीन्स शांति के तरीके से बिल्कुल एमिकेबली जो रिजोल्व हो सकते हैं। अब कोर्सिव मीन्स, तो कोर्सिव अपने आप को आपको जो जहाँ किसी सैंक्शंस की फॉर्म में प्रेशराइज करके, प्रेशराइज टैक्टिक्स यूज करके, या इनफैक्ट लास्ट स्टेज सेमी वॉर टाइप, ब्लॉकेट टाइप, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे रिटॉर्शन, टिट फॉर टैट मैंने साइड में है, तो आपको याद रहेगा कि ये रिटॉर्शन क्या होता है, कि रिटॉर्शन बेसिकली आपका जैसे एक कंट्री ने आपके साथ जो किया वैसा ही आप उस कंट्री के साथ वो रिस्पॉन्ड करो, तो दैट इज द टिट फॉर टैट, ठीक है ना। अगर मान लिया एक कंट्री ने, मान लिया सपोज पाकिस्तान हमारे इंडियन जो है एयरक्राफ्ट को अपना एयर स्पेस बंद कर देता है, जैसे कई बार करता रहता है, ऐसे ही उसकी रिटेलिएशन में अगर इंडिया भी पाकिस्तान एयरक्राफ्ट के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दे, तो दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रिटॉर्शन। तो चीजें आपको तभी याद रहेंगी जब आप प्रैक्टिकली जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है पिछले का, उससे कनेक्ट करोगे, आप उन्हीं एग्जाम्पल्स को आप यूज करोगे। अब जैसे इसमें कई बार क्या होता है कि एक स्टेट ने क्या किया, द सिटीजन स्टेट्स आर गिवन अनफेयर ट्रीटमेंट इन अनदर स्टेट थ्रू रिग्रेस पासपोर्ट रेगुलेशन। मान लिया आज आपने रेगुलेशन बना दिया, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चाइना ने एक रेगुलेशन बना दिया कि इंडिया, पाकिस्तान या कोई और, पाकिस्तान के साथ तो दे आर मोर प्रो, इंडिया या कोई और कंट्री का देख लिया उन्होंने कि इनके सिटीजन्स के जो पासपोर्ट्स के वीजा के जो रूल्स हैं वो बड़े स्ट्रिंजेंट कर देता है, तो ये बड़े हमें पिंच होगा क्योंकि हमारे जो सिटीजन्स का इंटरेस्ट उससे अफेक्ट हो रहा है। तो व्हाट विल डू सेम वे, वी विल चेंज इन आवर पॉलिसी आल्सो, हम भी अपने पासपोर्ट रेगुलेशन में चेंज कर देंगे ताकि उनको भी पिंच हो, सो दैट दे विल कम डाउन, तो सेम वे विल कम डाउन। अब जैसे कई बार हमने देखा, जैसे ये आपकी कोवैक्सीन और फिर बाद में कोविशील्ड भी शायद, तो WHO ने रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। कुछ कंट्रीज ने बोल दिया था कि जो इनसे वैक्सीनेटेड होंगे हम उनको वैक्सीनेटेड नहीं मानेंगे, अगर जो अखबार पढ़ते होंगे, ठीक है ना। तो इंडिया ने इसका प्रोटेस्ट भी किया था और फाइनली ये डिप्लोमेटिक चैनल से फिर रिजॉल्व हुआ और फाइनली दे एक्सेप्टेड। अभी जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं, पोलैंड के अंदर आई थिंक रशियन एम्बेसडर्स के ऊपर वो इंक थ्रो की फेस पे, अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो पोलैंड के अंदर, ठीक है ना। तो रशिया ने उसको प्रोटेस्ट किया कि भाई वो अपोलॉजी मांगे। सेम वे अगर पोलैंड का एम्बेसडर रशिया में हो और रशियन पीपल उस पर अगर ठीक है ना, तो इट इनवाइट्स सच काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस, यू कैन से बैड मेजर। तो ये रिटॉर्शन, ये डिपेंड करता है उस कंट्री उसको कितना सीरियसली लेता है उस इश्यूज को और किस हद तक उन चीज़ों को, क्योंकि एक अच्छा, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं क्योंकि एम्बेसडर, देखिए एम्बेसडर्स को इम्यूनिटी होती है,
एम्बेसडर्स के साथ एक हाई क्लास प्रिविलेज्ड बिहेवियर होना चाहिए। इट मीन इफ यू आर थ्रोइंग इंक्स एम्बेसडर्स ऑफ ए कंट्री, इट मीन्स you are defaming or you are throwing the ink to that entire country. अब रिप्रेजल इसे थोड़ा सा नेक्स्ट फॉर्म का हार्ड स्टेप है। ये स्टेप वाइज आप देखोगे, रिटॉर्शन, रिप्रेजल। तो बीइंग ए, देखिए मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं इनको मैथमेटिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं। जैसे नेगोशिएशन है, ये मैंने लिख ही दिया, तो आप ऐसे इसका भी बना सकते हो, रिटॉर्शन, रिप्रेजल, एम्बार्गो, पैसिफिक, इंटरवेंशन, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरवेंशन ऐसे करके। तो आपको ये रहेगा, देखिए रिप्रेजल में क्या होता है कि जनरली ये आपकी सीजर किसी का, उस दूसरे कंट्री का शिप पकड़ लिया, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली, ठीक है, तो यानी इस तरह के एलिगेशन लगा कि हमारे ये टेरिटोरियल वाटर में था, हमारी सी जुडिक्शन में था, है ना, इस तरीके। तो अगर किसी कंट्री को बैकफुट पे लाना है तो उसके शिप्स वगैरह को आप सीज कर लो, प्रॉपर्टी सीज कर लो, ताकि वो नेगोशिएशन पे आए। ये सारे वही टैक्टिक्स हैं जैसे आप भी अपनी लाइफ में करते होंगे, ठीक है ना। अब एम्बार्गो एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, शिप डिटेंशन, जिससे याद रहेगा आपको। अब देखिए आपका ये स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब डिटेंशन होता है। इंटरनेशनल लॉ में जनरली हम शिप्स को डिटेन करते हैं, ठीक है ना, तो क्योंकि ऑब्वियसली शिप्स जाएंगे। एयरक्राफ्ट को आप रिफ्यूज कर सकते हो। अगर एयरक्राफ्ट को दूसरे कंट्री को आप उड़ाओगे मिसाइल से, तो वो सीधा सीधा इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन भी हो जाएगा और ज्यादा मीडिया कवरेज मिलती है। तो स्टेट क्या है कि अपने एम्बार्गो, देखिए पहले तो ये भी क्या है कि जैसे एक पहला स्टेप है इसमें भी, पैसिफिक एम्बार्गो, बड़ा पीसफुल तरीके से। क्या है, मान लिया किसी कंट्री के साथ हमने अपना फॉर टाइमिंग के लिए बिजनेस स्टॉप करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने जो वेसल्स हैं, शिप हैं, वो उस कंट्री में नहीं जाएंगे। हम अपने शिप को डिटेन कर लेंगे कि ये नहीं जाएंगे, ठीक है, आप उनको दूसरे कंट्री पे लगाइए या दूसरे काम पे लगाइए, लेकिन उस कंट्री को पर्टिकुलरली आप सप्लाई नहीं करेंगे। मान लिया आज किसी पर्टिकुलर कंट्री को एडिबल ऑयल की जरूरत है, ठीक है ना, ऑयल के बगैर तो आप सब्जी भी नहीं बन सकती, हर आदमी घी अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ ऐसे कोस्टल स्टेट्स हैं कि जहां पे आपको फिश ऑयल या फिश सी चलती हैं ज़्यादा, ठीक है ना, तो कई बार क्या है कि सीरियल्स वगैरह है, तो ऐसी डिमांड होती है, तो आपको पता है, या जैसे मान लिया आप कोरोना का था, तो आप जो आपकी वैसे तो एज ए गुड गेस्चर हमने काफ़ी सारी जो वैक्सीन थी वो पहुंचाई थी दूसरे बाहर वर्ल्ड में, ठीक है ना, काफ़ी कंट्रीज को, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी काफ़ी कंट्रीज को हमने हेल्प की, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यू कैन से। लेकिन अगर हमने उस समय उसको रोकना है, ठीक है, हमने इस कंट्री को स्टॉप कर देना है, तो अल्टीमेटली उसका बड़ा एक तो इंटरनेशनल मैसेज गया, दूसरा उस कंट्री के ऊपर एक प्रेशर आएगा कि भाई ये कंट्री आपके अगेंस्ट स्टेप उठा सकती है, तो ये पैसिफिक बोलेंगे। और अगर आपने बोल दिया हॉस्टाइल एम्बार्गो, तो हॉस्टाइल एम्बार्गो, हॉस्टाइल तो आपको मतलब पता है ना, भाई पाकिस्तान इज अ हॉस्टाइल कंट्री टू अस, चाइना इज अ हॉस्टाइल कंट्री टू अस, ठीक है ना, नॉट एट द ऑल टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है ना। तो यहां पर जो हॉस्टाइल का है कि आपने कंप्लीटली उसको, जो दूसरे स्टेट्स के शिप को भी रोक लिया कंप्लीटली चौक पॉइंट, तो वो आपका हो जाएगा हॉस्टाइल एम्बार्गो। तो ये एक नेक्स्ट स्टेज का है, जिससे क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक स्ट्रांग मैसेज आएगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी 100% इसको ऑब्जेक्शन करेगी। तो देखिए अब embargo at present may be applied by a state individually or collectively under the authority of the United States. In an embargo is applied by a state, it should not be endanger the international peace and security. तो देखिए यूएन की जुडिक्शन के अंडर भी लगाया जा सकता है कि कुछ कंट्रीज मिलके और यूएन सिक्योरिटी ने डिसाइड कर लिया कि वी विल पुट द एम्बार्गो, ठीक है ना, तो वो यूएन की जुडिक्शन में भी हो सकता है ऐसा, और इंडिविजुअल कंट्री भी कर सकता है।
पैसिफिक ब्लॉकेड, देखिए पैसिफिक जो ब्लॉकेड है ये बेसिकली जब एक स्टेट की कोस्ट को ब्लॉक किया जाए, एक स्टेट है बाई चांस हमारी तो कोस्ट यहां से यहां तक है, कुछ ऐसे भी जो चारों साइड से भी कोस्टल है, कंप्लीटली कोस्टल, ठीक है, तो आपकी जो कोस्टल जो है उस एरिया को ब्लॉक कर दे फॉर पर्पज ऑफ द इनग्रेस एंड इंग्रेस, आना और जाना दोनों साइड का, तो उससे आपकी ऑब्वियसली इकोनॉमी भी इफेक्ट होगी। तो यहां पर जो ये कहने के चाह रहा है कि अगर पीस टाइम में आप ऐसा करते हो तो उसको हम बोलेंगे पैसिफिक ब्लॉकेड, और अगर वॉर टाइम में अगर आप कर रहे हो इसको तो ये आपका हो जाएगा आपका हॉस्टाइल ब्लॉकेड यू कैन से, और अगर आप कलेक्टिवली कर रहे हो तो ये कलेक्टिवली ब्लॉकेड बोला जाएगा इसको। जैसे एक बार इराक वॉर, जब इराक ने सद्दाम हुसैन साहब थे जब, तो उन्होंने किस कंट्री पर अटैक किया था, मैंने पिछले लास्ट क्लास में बताया, कुवैत, यस। तो कुवैत बहुत एक छोटा सा कंट्री है, तो ऑयल रिच कंट्री है, ईरान के पास भी ऑयल है, लेकिन सद्दाम हुसैन साहब को ज़्यादा ऑयल चाहिए था, ज़्यादा ऑयल रिसोर्सेज, क्योंकि ये जो आप ये देखोगे ना, ये कंट्रीज मोस्टली इनकी जो इकोनॉमी है ये ऑयल बेसिकली एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है, तो ये एक्सपोर्ट करते हैं, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फिर क्या किया, तो यूएसए ने रेजोल्यूशन मूव किया, सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूवल किया, और इराक के ऊपर क्या है कि कलेक्टिवली ब्लॉकेड लगा दिया था, तो इराक को बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। इंटरवेंशन जो है आपका, अब इंटरवेंशन तो ये एक्टिव या पैसिव इंटरवेंशन हो सकता है कि आपकी किसी मैटर में आपके अगर आके आप एकदम देखिए, अभी जैसे अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करते हैं, अब इंटरवेंशन किस कंट्री ने, अब स्टेट में तो आ नहीं रहे हैं, कोई कंट्री नहीं आया ना, लेकिन आर्म सप्लाई कर रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक अलग चीज है, मेडिसिन सप्लाई कर देना या कुछ इटेबल आइटम्स सप्लाई कर देना, लेकिन अगर आप आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई कर रहे हो स्टेट वे, तो आप एक प्रकार का क्या है कि उसमें इनडायरेक्टली इंटरवेंशन कर रहे हो, ठीक है। तो दूसरा कंट्री उन कंट्रीज को भी एट वॉर ट्रीट कर सकता है, अभी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की हेल्प है और दूसरा कंट्री उसको कितना सीरियसली लेता है। अब जो इसमें यूजीसी नेट वगैरह का एग्जाम देने वाले हैं, तो उसमें ज़्यादातर क्या है कि ये परेशान करते हैं जूरिस्ट और थिंकर्स। तो जैसे इसमें मैं देख रहा था, प्रोफेसर होपनहेम कहते हैं, इट इज ए डिक्टोरियल इंटरफेरेंस बाय ए स्टेट इन द अफेयर्स ऑफ द अनदर स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग और ऑल्टरिंग द एक्चुअल कंडीशन ऑफ थिंग्स। तो आपकी इसको 2-3 वर्ड्स, आपको डिक्टोरियल वर्ड है तो उसको अंडरलाइन करो और होपनहेम के साथ जोड़ दो और आगे लिख दो इंटरवेंशन। तो ये चीज़ें ऐसे ही याद रहेंगी उस टाइम पे, नहीं तो याद नहीं रहेंगी। फिर आपका क्या है, प्रोफेसर विनफील्ड, घूम फिर के ये आपको 10-15 ही जूरिस्ट मिलेंगे पूरे इंटरनेशनल में घूमते हुए, और वो हर उस पर, चाहे वो रिकॉग्निशन में बोलेंगे, चाहे असाइलम पे बोलेंगे, चाहे एक्सट्रेडिशन में बोलेंगे, चाहे वो ब्लॉकेड पे बोलेंगे, यानी मतलब सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पे, तो उनका आप एक एक दो कीवर्ड याद रख लिए कि इसने इस उसके रेफरेंस में बोला था, तो आपका पूरा का पूरा सेट तैयार हो जाएगा। तो विनफील्ड कहते हैं, इट इज ए क्लासिफाइड इंटरवेंशन इनटू 3 कैटेगरीज, इंटरनल, एक्सटर्नल और पुनिटिव, पनिशमेंट देना इंटरवेंशन। तो ये आपका था, लेकिन ऐसे मैं कुछ जैसे डिस्प्यूट बताना चाहूँ आपको, जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं वर्ल्ड के, लेकिन जो अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं। 38 पैरेलल है जो आपका कोरियन वॉर की जो इश्यूज है नॉर्थ और साउथ कोरिया वाला, वो आपने गूगलिंग करके देख सकते हैं आपका। एक ये डियायू आइसलैंड ईस्ट चाइना सी में, अब देखिए साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी का मैं देख रहा था कि साउथ चाइना सी इंडोनेशिया इसके अगेंस्ट गया, ठीक है। इसमें जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है गया, इसका 12 जुलाई 2016 का इसका ट्रिब्यूनल का अवार्ड भी आया, तो वहां साफ साफ बोल दिया कि देयर वाज नो एविडेंस दैट चाइना हैड एक्सरसाइज एक्सक्लूसिवली कंट्रोल हिस्टोरिकली ओवर द चाइनीज सी, ठीक है। तो ये आपका वाटरवेज पे ऐसा कोई इसका एविडेंस नहीं मिला, लेकिन जस्ट ड्यू टू इस मसल और मिलिट्री पावर, तो चाइना जस्ट फॉर द सेक ऑफ थ्रेट टू देयर सॉवरेनिटी और दे आर डूइंग एग्रेसिवली पेट्रोलिंग इन द साउथ चाइना सी। इंडोनेशिया के फेवर में डिसीजन आ गया, लेकिन फिर भी वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। देन हु विल इंप्लीमेंट इट? व्हेनेवर इट कम्स टू द सिक्योरिटी काउंसिल, दोज 5 members, permanent members, China is sitting there, China being a permanent member,
तो उसको ब्लॉक करेगा, तो कभी कुछ हो नहीं पाएगा। अल्टीमेटली कभी कभार ऐसा लगेगा, क्या हर बार, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लॉ फॉर ए स्ट्रॉन्ग नेशन इज इमेटेरियल। इजराइल पैलेस्टीन का देख ही रहे हैं आप, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपका वेस्टर्न सहारा वाला है, कुर्ली आइसलैंड है, तो आप अपने ऑन टाइम पे देख सकते हो इन चीज़ों को। ये सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं। ताइवान वाला है चाइना के साथ, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रिजॉल्व होंगे भी नहीं, क्योंकि एक कंट्री इतना स्ट्रांग हो चुका है, दूसरा कंट्री बहुत छोटा है, तो वो उसको कभी भी निकलने नहीं देगा आगे। अब मैं ये देख रहा था कि रन ऑफ कच्छ आर्बिट्रेशन जो हम अभी इसका देखा था, तो इसमें ये ओके, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। डिस्प्यूट्स इन आईसीजे, देखिए आईसीजे के अंदर मैं देख रहा था 6 केसेस इंडिया से रिलेटेड है, जिसमें खुद इंडिया ने 2 केस डाले हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान ने भी इंडिया के अगेंस्ट 2 केस डाले हैं, टिट फॉर टैट, रिटॉर्शन, ठीक है। पोर्तुगल ने भी 1 केस डाला है इंडिया के अगेंस्ट, और मार्शल आइसलैंड ने भी इंडिया के अगेंस्ट 1 केस डाला है। तो अब आप ये सोचोगे कि ये मार्शल आइसलैंड कहां से आ गया, तो पहली बार सुन रहे हैं, तो गो डू गूगलिंग, सर्च मार्शल आइसलैंड, इंडिया के साथ इसका क्या डिस्प्यूट्स है। और जो ये मैंने जो बताए आपको 6 केसेस, इसमें आप लोगों को देखना चाहिए कि 6 केस कौन से हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, कि क्यों हुए, किस स्टेज पे हैं, अवार्ड आ चुका है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, किस स्टेज पे हैं सारे, ठीक है। जैसे अगर मैं लेटेस्ट इसका बात करूं आपको, इसमें कुलभूषण जाधव जो केस थे, ठीक है ना, इसमें देखिए उन्होंने बोला कि ये एस्पोनेज एक्ट के तहत पाकिस्तान में इनको डेथ पेनल्टी दे दी, और वो इसको कह रहे हैं कि ही इज एक्स नेवल ऑफिसर, नेवी ऑफिसर थे पहले, तो ही वाज डूइंग स्पाइंग देयर। इंडियन अथॉरिटीज ने बोल दिया कि ये हमारे अभी करंट में ऑफिसर नहीं है, ही इज ए रिटायरी फेलो, ठीक है ना, तो वी हैव नो बिजनेस विद हिज, ठीक है ना। लेकिन बीइंग इंडियन नेशनल ना, तो सर्टेनली वी विल रेज द वॉइस इफ समथिंग इज हैपनिंग इनएप्रोप्रिएट और अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ विद आवर सिटीजन। तो यहां पर जब इनको इसमें डेथ पेनल्टी दे दी, तो अब मैं इसमें देख रहा था कि आपका वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन, इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है, पाकिस्तान भी है। इस वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन के ऊपर क्या है, इसका आर्टिकल 36 क्लॉज 1 कहता है कि हमारा काउंसलर, हमारे एम्बेसडर्स, अगर हमारे वहां पर प्रिजनर हैं या प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर उसको बोला जाता है कि अगर हमारे डिफेंस फोर्सेस के वहां पे कैप्चर हो जाते हैं वॉर के टाइम में उनकी टेरिटरी में, और वहां उनकी कस्टडी में है, तो दे बिकम द प्रिजनर ऑफ वॉर, ठीक है। तो हमारे काउंसलर हैं, वो वहां जाके उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, समझ में आया। लेकिन कुलभूषण जाधव के केस में इंडियन काउंसलर को डिनाई कर दिया, तो ये बात उठी कि ये तो बेसिक राइट था, इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन था कि कुलभूषण जाधव को काउंसलर के साथ मिलने नहीं दिया। जो उन कन्वेंशन के हिसाब से जो जाधव को जो राइट्स थे अवेल थे, वो अवेल नहीं कर पाया, है ना, तो वो अपना एडवोकेट भी अपनी चॉइस के नहीं कर पाए। तो इस तरह के सारे बहुत सारे इश्यूज थे, और फिर इसको इंडिया ने आईसीजे में लेके जाते हैं, और आईसीजे इस पे रोक लगा देते हैं, 4 टाइमिंग के लिए केस चला हुआ है, और वहाँ की जो टेररिज्म जो कोर्ट है वहाँ पे ये मैटर है। और इसमें मेरे को उस एडवोकेट का नाम बताइए जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाधव का केस लड़ा था। हाँ जी, हरीश साल्वे, यस। और कितनी फीस उन्होंने चार्ज की थी? 1 रुपये। तो एक ही लड़की क्यों बोलती है? क्यों? सी रीड्स न्यूज़पेपर मेटिकुलसली। तो हरीश साल्वे साहब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में काफ़ी केस लेते हैं, और आई थिंक अभी वो ऑलमोस्ट सेटल हो गए हैं यूके में ही, और वो बीच बीच में आते रहते हैं जब भी यहाँ पे केस उनका होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कि ये जो कन्वेंशंस वगैरह का है प्रॉपर फॉलो नहीं होता है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए 4 टाइमिंग के लिए, तो लेट अस सी कैसी चीज़ें मूव करती हैं। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इसमें वो ये डिपेंड करता है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो कितना इसको एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो विद दिस वी आर ओवर विद द टुडेज टॉपिक। थैंक यू।